Good morning, students. Hope you all are fit and fine and enjoying the chapter and doing hard work. So, beta ji, we are doing the chapter Money and Credit of Economics, and this is our chapter number 3. So, beta, what we are doing today and what we are getting from the today's topic, let us first focus on that. So, the learning outcomes of the topic are, after going through the today's concept, students, you will be able to learn about the loan activities of the bank. And this is a very important thing for a student of economics. I can't say not only for a student of economics, but for every common man. To clear this concept, it is essential. So, you can also distinguish between the formal and informal sources of credit. Memorize the meaning of credit and its terms. So, beta, these are the learning outcomes which you are getting from the today's topic, and I just hope that after going through the today's topic, you can answer all these things with full confidence. So, let's start our topic of the day. Loan activities of bank or modern banking system. Have you ever think of what do the banks do with the deposit which they accept from the public? मीन्स हमने प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ा कि हमारी स्टार्टिंग में सैलरी आ जाती है एंड पीपल आर हैविंग एक्स्ट्रा कैश इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, सो दे वांटेड कि वो उसको बैंक में रखें ताकि उनकी मनी भी सेफ रहे और उनको इंटरेस्ट भी मिले. तो हम कभी ये सोचते हैं कि व्हाट डू द बैंक डूज विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. बेटा, देर इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म बिहाइंड दैट. Banks keeps only a small proportion of their deposits as cash with themselves. Banks are just keeping a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. Means whatever money they are having as cash in the bank, they just keep the 15% of it. And this is kept as a provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day. And why they are keeping this 15% cash in the banks? कि जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो अगर वो किसी भी दिन मनी विड्रॉ करने के लिए आते हैं तो उनको उनकी मनी मिल सके. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash and the bank is able to manage with this cash. Then the question again arises कि then what do the bank do with the extra cash? So banks use the major portion of the deposits to extend loan. So there is a huge demand for loans for various economic activities. आज की डेट में तो हम देखते हैं कि हर कोई जो है लोन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है. तो मीन्स देर आर सो मैनी थिंग्स इन आर डेली लाइफ for which we are depending on the banks for the loan. So bank offered the loan to the people who are in need of funds for various economic activities. So beta, banks are just keeping 15% of their total deposits as cash to pay the depositor who can withdraw money from bank anytime. With the remaining money bank extends loans. तो इससे क्या होता है? बैंक मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. जो बैंक के पास पैसा आता है, बैंक उससे दूसरों को लोन एक्सटेंड करता है, उनकी लोन की ज़रूरत को पूरा करता है. तो बैंक जो है इट मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. एंड इन दिस वे द बैंक्स mediate between those who have surplus fund and those who are in need of these funds. देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है.
मीन्स द पर्सन्स हु आर इन द नीड ऑफ द फंड, जिनको जो बोरोवर्स होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, जिन्होंने एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट की होती है बैंक में। तो बैंक उन लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो बैंक क्या करता है कि जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है उनको लोन एक्सटेंड करता है फ्रॉम द मनी, उस मनी से जो कि जिनके पास सरप्लस फंड होता है और जिन्होंने मनी को वहाँ पे डिपॉजिट किया होता है। तो दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, तो वो जो बोरोवर्स होते हैं उनको मनी मिल जाती है। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो जो लोग मनी डिपॉजिट करते हैं उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, मनी के ऊपर, जैसे हम जो अपना कैश बैंक के अंदर रखते हैं उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, आप ये ध्यान से रखो, जो बैंक हमें पे कर रहा है, जो हमारी मनी के ऊपर जो बैंक हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है वो भी तो यहीं से आएगा। तो जो बैंक है जब वो किसी को लोन एक्सटेंड करता है तो उनसे थोड़ा उसका जो चार्ज होता है वो हाई होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। तो बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। मतलब जो हम लोगों के पैसे अगर बैंक में जमा है तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे पहले 9% था, फिर कम हुआ और फिर उसके बाद 8-7, तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपैरेटिवली कम होता है, और जिस इंटरेस्ट पे जो बैंक है वो दूसरों को लोन देता है वो इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बेटे यही तो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यानी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर, बोरोवर से वो जो चार्ज कर रहा है और डिपॉजिटर को जो पे कर रहा है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही बैंक की आमदनी का स्रोत है। मीन्स इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द बैंक। आई थिंक अभी आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि हम हमेशा सोचते हैं कि जो हमारे पास कैश होता है, सरप्लस कैश होता है, हम उसको बैंक में रखते हैं, तो बैंक उस मनी का क्या करता है, तो बैंक जो होता है वो ज़रूरतमंदों को लोन एक्सटेंड करता है, और जिनको वो लोन एक्सटेंड करता है उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वहाँ से जो मनी आती है उसी मनी में से जो हमने कैश रखा होता है बैंक में उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली लो होता है, तो वहीं से निकलता है। और साथ ही बैंक की ये मेन जो होता है, ये जो बैंक ये जो डिफरेंस होता है जो मनी का, मीन्स व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। अब ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बैंक अपनी लोन एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करता है। एंड दिस इज़ क्वाइट ईजी कि हाउ द पीपल आर गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक and the money they are giving to the bank, and from that money only the bank is able to give us interest on the deposits, and the difference between these two systems, or जो the difference between the money which is charged from borrower and what is paid to the depositor is the main source of income of the bank. So here you can look कि how depositor deposit the money in the bank, how the borrower they go to the bank and they ask for the money they need, and they do the documentation and the other requirements and they get the loan, and how bank is extending loan to the borrowers. So this is a picture from which you can easily understand this concept. Okay, then come to the next topic and it is credit. Credit क्या होता है बेटे? A large number of transaction in our day-to-day life, in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. So credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. And as I have told you, a large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. आप ये देखो, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक लोन है,
इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कि जो लेंडर है वो सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, वो बोरोवर को मनी देता है, गुड्स देता है, सर्विसेज देता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और वो उसको फ्यूचर में पेमेंट करने का एक प्रॉमिस देता है। तो ये आपका जो है दिस इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट। देन वी शुड नो अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं? तो बेटे इट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच अ लोन इज़ गिवन। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं इट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज़ गिवन। जब लोन दिया जाता है ना तो कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो वो कंडीशंस जो लगाई जाती हैं इट मे इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस। तो ये इसके अंदर मतलब ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती हैं तो इट मतलब कि उसके अंदर किस तरह का मेथड होना चाहिए पेमेंट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट और कंडीशंस आती हैं। तो इसके अंदर हम लेके चलेंगे इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर ये सारे आ जाएंगे आपके, इंटरेस्ट रेट है, कोलैटरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट है और बाकी रिलेटेड कंडीशंस में आपका क्या आ जाएगा कि मतलब मोड ऑफ पेमेंट है। तो ये सारे कंप्राइज करते हैं एंड दे ऑल क्रिएट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एक यहाँ पर मैं चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि क्रेडिट समटाइम इट इज़ पॉजिटिव एंड समटाइम इट इज़ नेगेटिव। समटाइम इट इज़ पॉजिटिव इन द सेंस कि आपकी बुक में टू एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 43 कि जैसे अगर फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और एक शू मैन्युफैक्चरर है और उसको ऑर्डर मिलता है 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देनी होती है इन 1 मंथ टाइम। टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। तो उसे ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग और उसे रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम क्या करता है, ही ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। वो 2 सोर्सेज से लोन ऑब्टेन करता है। पहले तो उस लेदर सप्लायर को कहता है कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो विद अ प्रॉमिस, देखो यही क्रेडिट होता है, विद अ प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। सेकेंडली वो कहाँ से, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लास्ट ट्रेडर। जैसे वो लास्ट ट्रेडर को कहता है कि जस्ट गिव मी द एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो ये देखो उसने 2 जगह से ये काम किया, वहाँ से 1000 का एडवांस लिया, वहाँ से उसने लेदर वाले को ये कहा कि आप मुझे लेदर प्रोवाइड कर दो, और इससे क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड ही मेक्स अ गुड प्रॉफिट एंड ही रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट। तो इन दिस केस जो सलीम था ही ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्रेडिट हेल्प हिम्स टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसने उसके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव रोल कैसे आ जाता है, जैसे स्वप्ना है तो वो एक स्मॉल फार्मर है, वो ग्राउंडनट उगाती है इन 3 एकड़ ऑफ लैंड एंड शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। उसे लगता है कि उसकी फसल अच्छी होगी तब वो आराम से रीपे कर देगी लोन को। तो क्या होता है कि उसकी क्रॉप जो होती है इट इज़ हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। सपना उसके ऊपर स्प्रे करती है, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स यूज़ करती है, बट इट डजेंट क्रिएट अ बिग डिफरेंस एंड शी इज़ अनेबल टू पे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और फिर उसका वो जो डेप्ट उधार था वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाता है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना अगेन टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन एंड इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, एक नॉर्मल क्रॉप होती है, लेकिन वो अर्निंग्स जो होती हैं दे आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन एंड शी इज़ कॉट इन डेप्ट। और वो किस में घिर जाती है, उधार के चक्कर में। एंड शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। और उसे अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है इस उधार को चुकाने के लिए। तो आप ये देखो कहीं पर क्रेडिट का पॉजिटिव साइन आ रहा है तो कहीं पर क्रेडिट का नेगेटिव एस्पेक्ट हमें दिख रहा है। और मेनली रूरल एरियाज़ में द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल, जैसे उसमें सीड्स की कॉस्ट होती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ होता है। तो देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 मंथ्स होते हैं कि क्रॉप उगाई जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग होती है एंड द फार्मर्स बाय दिस इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप।
Farmer usually take crop loan at the beginning of the season and repay the loan after harvest. और repayment जो होती है of the loan की, it is crucially depend on the income from the farming. तो इसमें देखो जो स्वप्ना का केस था, द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल एंड शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन. तो क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना improves her earning, left her worse off, and this is commonly called as debt trap. और ये आपका क्वेश्चन भी आता है, debt trap. ट्रैप होता है जाल. And credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. So in one situation, credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before, and in another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. And these are the two situations by which we can discuss it: the positive aspect of the credit and the negative aspect of the credit. And to repay her loan, she has to sell a portion of her land, and उससे क्या हुआ, the credit pushes her into the debt trap. So whether credit would be useful or not, it just depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. So beta, here are the terms. Means every loan agreement specifies an interest rate. जैसे कोई भी लोन एग्रीमेंट होता है उसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल मनी. तो ये आप जो ये टर्म्स देख रहे हो कि दीज आर कि इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब इसमें एक वर्ड आ रहा है कोलैटरल. इंटरेस्ट रेट तो आपको पता है क्या होता है. कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज एन एसेट, वो संपत्ति होती है डैट द बोरोवर ओन्स, जो कि बोरोवर के पास होती है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक, एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. मतलब वो एक गारंटी के तौर पे रख देता है बैंक के पास कि ये मेरी संपत्ति है जो कि मैं आपके पास गारंटी के तौर पे रख रहा हूँ कि इन केस आई एम फेल टू रिपे द लोन, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. कि इन केस जैसे लोग घर गिरवी पे रख करके पैसा ले लेते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, तो इन केस अगर वो पैसा नहीं जमा करा पाते तो बैंक के पास ये राइट है कि वो उस कोलैटरल को सेल करे और उससे अपनी पेमेंट को वापस हासिल करे. तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइफ स्टॉक, ये कुछ कॉमनली यूज्ड जो होते हैं कोलैटरल्स की फॉर्म होती हैं. तो बेटे दीज आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ये हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं. तो इसमें आप ये देखो कि क्रेडिट का कि किस तरह से क्रेडिट का स्कोर होता है. और आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू कि क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट की टर्म्स क्या होती हैं. तो इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ए मोड ऑफ पेमेंट, दे ऑल कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो ये आपके क्रेडिट का देखो, क्रेडिट का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और क्रेडिट का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. तो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं दे वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर. तो वो उसी के ऊपर आपकी डिपेंड करती हैं. तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इज़ देयर. ये देखो कि जैसे लोन दिया जाता है फ्रॉम मनी लेंडर. तो इन अर्लियर टाइम स्मॉल फार्मर्स जो होते थे दे बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन लोन फ्रॉम ट्रेडर्स. ठीक है, नाउ डेज फार्मर्स कैन गेट लोन फ्रॉम एग्रीकल्चर ट्रेडर्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट एंड दिस क्रेडिट इज रीपेड व्हेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. देन लोन फ्रॉम बैंक कि medium and large farmers take bank loan for cultivation at very low interest rate and easy repayment. So bank also provide other facilities to borrower. Then loan from employer like landless agricultural laborer who have no work need loan to meet their daily expenses, so they have to depend on their employer for loan. So these are the variety of credit arrangements. Then loan from cooperatives. The major source of cheap credit in rural areas are the cooperative society, जिसके बारे हम आगे पढ़ेंगे. Apart from bank, and the members of the cooperative pool their resources for cooperation in certain areas.
and cooperatives can be established for farming, weaving, etc. So बेटे these are the variety of credit arrangement. ये भी आपके बुक के अंदर है, पूरा दिया हुआ है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट एंड द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन इन द बुक, सो यू हैव टू स्टडी द बुक थॉरली. देन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. ये क्रेडिट हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ये हमें क्रेडिट मिलता कहाँ से है. तो इसके दो सोर्स होते हैं, वन इज़ फॉर्मल सोर्सेज एंड द अदर इज़ इनफॉर्मल सोर्सेज. तो हम ये देखते हैं कि जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वी हैव सीन कि जो पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड इनटू फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. तो एमंग जो हमारे फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं उसमें बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स होती हैं, और जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं उसके अंदर होते हैं हमारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मल में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स होती हैं, और इनफॉर्मल में आपके मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं. तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज में नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज आते हैं. जैसे आपने अपने दोस्त से उधार पकड़ा तो वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है. आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से लेते हो तो वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है. सो ये आपके अलग अलग हैं. तो इज़ मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर, कि ज़्यादा हमारा जो क्रेडिट लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है. तो ये हमारा देखो, अब जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. और जितने बैंक होते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था ना अभी कि बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव. तो आरबीआई मॉनिटर करता है द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. सिमिलरली आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स. और पीरियोडिकली बैंक्स जो होता है हैव टू, सभी बैंक्स को दे हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट. And there is no organization which supervises the credit activities of lender in the informal sector. फॉर्मल सेक्टर में तो उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आरबीआई पूरी तरह से उनके ऊपर सुपरविजन करता है. पर इनफॉर्मल सेक्टर में देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट दे चूज एंड देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. अगर किसी ने किसी को उधार दिया है और वो उसका उधार नहीं चुका रहा तो इनफॉर्मल सेक्टर में तो वो कैसे उससे उधार ले रहा है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं आती फिर. तो अगर हम कंपेयर करते हैं फॉर्मल लेंडर्स को, तो कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स दे चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन. इसलिए जो कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ ये इनफॉर्मल लोन्स है वो बहुत हाई होती है. एंड हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स कि लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज़ यूज टू रीपे द लोन. जब वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे उधार उठाएगा, पैसे उठाएगा, तो उसकी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा तो उसकी लोन रीपेमेंट में ही चला जाएगा. और कई बार तो ये होता है द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरिंग कैन मीन डैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज़ ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर. कई बार तो ये सिचुएशन आ जाती है कि उस इंसान की इतनी इनकम ही नहीं होती जितना कि उसको पैसा उधार चुकाना पड़ता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था. इसीलिए जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, दे नीड टू लैंड मोर, कि उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. मतलब कि जो हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ नीड्स. दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अगर उनको बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी से आराम से लोन मिलेगा तो बेटे ये हैं हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. अब आप ये देखो कि इसके बाद अगर हम देखते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, उनमें डिफरेंस क्या है. तो उनमें डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज में. देखो फॉर्मल सोर्सेज में रिचर पीपल हैविंग एसेट विच कैन बी प्लेस्ड एज कोलैटरल. जो अमीर लोग होते हैं उनके पास एसेट होते हैं और वो उसको एज ए कोलैटरल बैंक में रख देते हैं. इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है, पुअर पीपल नॉट हैविंग एसेट विच कैन बी प्लेस्ड. तो इसलिए जो गरीब लोग हैं वो उनको बैंक से लोन लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो ना तो डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं,
ना वो कोलेट्रल रख पाते हैं, इसीलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉर्मल सोर्सेज में रीज़नेबल लो है और इनफॉर्मल में काफ़ी हाई है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो ईजिली लोन जो है अटेन कर लेते हैं और कंपैरेटिवली बड़े लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बेचारा जो गरीब है वो यहाँ पर भी मारा जाता है और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे इनफॉर्मल सेक्टर्स पे ही डिपेंड होकर रह जाता है। फॉर्मल सोर्सेज के लोन के सोर्सेज हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जबकि इनफॉर्मल के हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और लैंड ओनर्स। देन एक्शन ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट में मतलब क्या होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपने वहाँ पे कोलैटरल रखा है और आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो कोलैटरल को वो जब्त कर लेते हैं, उसको बेच देते हैं और अपनी मनी रीपे कर लेते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में बोरोवर कैन बी मेड एज बॉन्डेड लेबर और मेड टू पार्ट विद लैंड ओन बाय देम। और जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है कि उसकी ज़मीन के टुकड़े को ही वो अपने पास रख लेते हैं, और पहले तो क्या होता था कि उसको बंधुआ मजदूर बना लेते थे। तो बेटे रेगुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, वाइल इनफॉर्मल सेक्टर में देखो तो नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर दैट सुपरवाइजेज दीज सोर्सेज। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आप बड़े आराम से ये जो देख रहे हो एक बार डायग्राम है, तो उसमें आप ये देख रहे हो कि किस तरह से ये जो डाटा शो किए हुए हैं कि एक्सेस टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज में द रेड लाइन इज़ फॉर द इनफॉर्मल सोर्सेज एंड द ब्लू लाइन इज़ फॉर द फॉर्मल सोर्सेज। एंड यू आर वॉचिंग कि कैसे पहले फॉर्मल सोर्सेज का वो हाई होता है, फिर वो नीचे जाता है, तो इसमें देखो कि कहाँ तक रहता है, और इनफॉर्मल का कैसे नीचे से होते हुए ऊपर जाता है। कहने की बात यही है कि भी इनफॉर्मल सेक्टर में इतनी डॉक्यूमेंटेशंस और इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे किसी को एकदम से मनी की ज़रूरत पड़ गई तो बैंक से मिलने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर वो लोन के लिए जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है, तो ऐसी कंडीशंस में वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएगा जहाँ से वो ईज़िली अटेन कर सके और अपनी टाइम की डिमांड को पूरा कर सके। तो बेटे दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। और ये 5 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, द बेसिस इन विच और हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इट, और फॉर्मल सोर्सेज में एंड इनफॉर्मल सोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बोरोवर कैपेसिटी, एक्शन ऑन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट एंड रेगुलेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेटे हेयर आई सम अप डेट द थिंग्स। आज आपको बहुत नई चीज़ों का ये पता होगा। कोलैटरल का पता चला है, क्रेडिट का पता चला है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पता चली हैं, देन व्हाट आर द 2 सेक्टर्स फ्रॉम वेयर वी कैन अटेन दिस क्रेडिट। तो वन इज़ फॉर्मल सोर्सेज एंड द अदर इज़ इनफॉर्मल सोर्सेज। तो बेटे दीज आर द टर्म्स जो कि आप अगर बैंक में जाते हो तो बैंक में ये बड़ी ही कॉमन टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और देखते हैं। तो आप लोगों को इसलिए मैं कहती हूँ कि दिस चैप्टर डील विद योर डेली लाइफ एंड यू कैन गेट मीन्स लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर आप इसको ध्यान से समझते हो, पढ़ते हो, बुक को रीड आउट करते हो, तो ईज़िली आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ आती हैं। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी ईजी वे, and I hope that you must achieve your learning outcome from the today's concept कि whatever we have discussed in the starting of the chapter, all the learning outcomes, and now you are able to answer them। और इसमें हमारे 5 मार्क के, ये 5 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपका ये लास्ट इसमें है, यही बहुत अच्छा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। क्रेडिट का क्वेश्चन बनता है, देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती हैं, और एक डेब्ट ट्रैप का बनता है, देन हाउ क्रेडिट प्ले द पॉजिटिव रोल एंड द नेगेटिव रोल, और उसमें आपको विद एग्जांपल्स उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो बेटे दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लग रहा होगा एंड यू आर एंजॉइंग द चैप्टर। सो डू योर बेस्ट बिकॉज दोज हु डू द गुड दे ऑलवेज फाइंड द गुड। जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, अच्छा करने वालों को हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसी के साथ आई एंड अप दिस चैप्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।